Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, videos on VRS is creating lot of anxiety and lot of questions from you. Now, one of our subscriber raised a very good question and which requires in-depth reply. He says, you had told in one of your videos that in 2023 to 29 there won't be vacancies, and now you are saying that after VRS scheme new vacancy will be created. We assume that prediction of no vacancies after 2023 onwards won't exist. Instead, it will get increased. Please reply. Very good question. And we have to understand this concept now more minutely. Now, what I said is now aggravating, and let's understand what is the impact. The VRS scheme says a person who is aged 55 to 60 in the month of December can apply for VRS. What does it mean? That a person who is due for retirement in 2021 to 2026 February, they are all eligible for apply for VRS. Say a person who was due to retire in 25 applies for VRS in 20. That means he is retiring 5 years early. So what will be the impact of this? The vacancy in 21 will go up, but that vacancy that would have arisen in 25 will go down. This is only we are preempting the vacancies. It is not that some new vacancies are being created. A person who would have retired in 25 will retire in 21. So this will aggravate the position as far as 25 is concerned. But this will improve the vacancy as far as 21 is concerned. Now let's take this position next year. Next year, the people, those are retiring between 2022 and 27 will become eligible, because scheme will be valid from which month? That will be valid from December 2021 to February 2022. That means any person who is going to retire up to February 27 can opt for retirement in 22. And the moment he opts, the number of vacancies in 2022 may go up, but the vacancies in 2026 will go down. And if most of these people opt for VRS in first tranche or second tranche, so most vacancies, those who are likely to, the people those are likely to retire in 25 or 26 is already retired now. So what will be the situation after 2023 to 2022, when there are very less people those are going to retire, can aggravate further. But this can be good if in 2023 the people those are likely to retire in 28 all take retirement. So it will be very difficult to predict impact as on today, because the impact will only be known when this VRS is successful and SBI decide to replace the retired people by new blood. When you take more new blood in recent years, naturally they will not retire in coming years. So the situation after 23 will improve or not,
will be only known after 2 years when this will be put to test, this scheme. So whether my earlier talk of 2022 to 29 will remain as it is or it will worsen will only come to know in coming days. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। VRS SBI पे हमारी काफ़ी टॉक चल रही है, उस पर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आज एक क्वेश्चन पूछा गया एक सब्सक्राइबर द्वारा कि सर आपने पहले ये बताया था कि 2023 से 2029 के बीच ऑलमोस्ट नील वैकेंसीज होंगी या कुछ वैकेंसीज नहीं होंगी क्योंकि बहुत कम लोग रिटायर होंगे उस अवधि के दौरान। पर अब आप कह रहे हैं VRS स्कीम आ गई है और उससे नई वैकेंसी क्रिएट होंगी, तो क्या जो आपकी पुरानी प्रिडिक्शन है 2023 के बाद वैकेंसीज नहीं होंगी वो ख़त्म मानी जाए और इससे वैकेंसी बढ़ जाएंगी ये माना जाए? अब देखो कितना जटिल क्वेश्चन ये पूछा गया। अब कई बार क्या होता है कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट हम पूरी बात समझ नहीं पाते। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको पता लगेगा इसकी जटिलता क्या रहेगी। अब जो आपकी अभी की स्कीम है वो दिसंबर में खुलेगी और फरवरी तक चलेगी, तो इसमें कौन लोग अप्लाई करेंगे? जिन्होंने 2021 में रिटायर होना था या फरवरी 2026 तक रिटायर होना था। मीन्स जो व्यक्ति बाद में रिटायर होना था वो अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं। मान लीजिए एक आदमी जिसने 2025 में रिटायर होना था वो आज अप्लाई कर देता है VRS के लिए, तो क्या होगा? 2021 में वैकेंसी बढ़ जाएगी, 2025 में घट जाएगी क्योंकि उस साल तो वो रिटायर होगा ही नहीं, है ही नहीं। अब वो उसकी जगह तो कौन आदमी आ गया नया, वो तो रिटायर नहीं होगा 30 साल तक। बात समझ रहे हैं? तो जब हम VRS स्कीम लाते हैं तो अगर शुरू के साल में बहुत अच्छा रिस्पांस आ गया तो जो फ्यूचर में रिटायर होने वाले लोग थे वो तो अभी रिटायर हो गए, तो वैकेंसी तो अभी बढ़ गई, तो बाद की वैकेंसी तो घट जाएंगी। ऐसे ही अगले साल 2022 से फरवरी 2027 तक जो रिटायर होने वाले लोग हैं वो एलिजिबल होंगे। अब फरवरी 27 में जो आदमी रिटायर होना है वो मान लीजिए 2022 में ही ऑप्ट कर देता है रिटायरमेंट 5 साल पहले, तो इसका क्या इफेक्ट आया? 2022 में तो वैकेंसी बढ़ गई मगर 26 में घट गई। तो इसी तरीके से 2023 के VRS में 2028 तक के लोग एलिजिबल होंगे, बट जब आपके लोग ही कम हैं जो 23, 24, 25, 26, 27 में रिटायर होने वाले हैं, तो नेचुरल है कि जो अधिकांश लोग हैं वो पहली VRS में ही एलिजिबल हो चुके हैं और ऑप्ट कर देंगे, और आने वाले सालों की VRS में बहुत कम लोग ऑप्ट करेंगे। तो जब ये स्कीम लागू होगी, कितने लोग ऑप्ट करते हैं, कितने लोग उसमें VRS में जाते हैं और कितने लोग रिप्लेस करते हैं, तभी ये आंकड़ा साबित होगा। पर ये मान लेना कि अगर 21 में वैकेंसी बढ़ गई और 22 में वैकेंसी बढ़ गई तो उससे 23 के बाद भी वैकेंसी बढ़ जाएंगी, ये अभी निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो मैंने आपको आंकड़ा दिया 23 से 29 में कम रिटायरमेंट है। मीन्स उस समय रिक्रूटमेंट ही कम हुई थी जिनकी एज ऐसी है कि जो 23 से 29 में रिटायर हो गए। तो यदि वो पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं तो 23-29 की पोजीशन और ख़राब ही होगी, इम्प्रूव नहीं होगी। हाँ, 21-22 वालों को फ़ायदा हो जाएगा, जो लोग 21 में एलिजिबल हैं, 22 में एलिजिबल है, क्योंकि आपने जो आने वाली रिटायरमेंट है उसको अभी कर दिया। बात समझ रहे हैं आप? तो VRS जो है फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी को हम अभी वैकेंसी में क्रिएट कर रहे हैं, नई वैकेंसी एज सच नहीं क्रिएट हो रही इससे। मतलब जो हमने कल वैकेंसी क्रिएट होनी थी वो आज ही मेरे ऑफिस में क्रिएट हो गई, क्योंकि जो आदमी कल रिटायर होना था, बाद में रिटायर होना था, वो जल्दी रिटायर हो गए। VRS का ये मतलब। पर जो लोग रिटायर होंगे वो तो उतने ही रहेंगे ना। तो अभी समस्या क्या है? अभी वैकेंसी कैसे बढ़ाई जाए? ये सोल्यूशन लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सोल्यूशन शॉर्ट टर्म है। मेरा ख्याल इससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी क्या हम कहना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।